Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 9. Today we will solve some problems based on area of a parallelogram and of a triangle. In last two theorems we know that when parallelograms on the same base and between the same parallels, then the area of the parallelograms are equal. When a triangle and a parallelogram are on the same base, then the area of the triangle will be half of the area of the parallelogram. So, students, today we will try to solve a question based on area. The question is exercise 9.2, question number 2. If EF and EFG and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that EFGH is equal to half of the area of parallelogram ABCD. This is the figure in which EFGH are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Since ABCD is a parallelogram, if we join these midpoints E, F, G and H, it will become also a parallelogram. So we have to prove that the area of this inside the parallelogram which is formed is half of the area of parallelogram ABCD. बच्चों, हम देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं. जैसा कि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, EFGH इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो मैंने वही लिखा ABCD is a parallelogram in which EFG and H are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. To prove हमें क्या मालूम करना है, ये अंदर वाली जो पैरेललोग्राम है EFGH, क्या इसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें प्रूव करना है. तो हम मान लेते हैं G और E को हम मिलाएंगे. हमने G और E को ज्वाइन किया, मैंने वही लिखा ज्वाइन GE. अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप है प्रूव. अब यहाँ पर EBCG अगर हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, ये भी पार्ट ऑफ दिस पैरेललोग्राम का है, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम है, चूँकि GE जो है ये पैरेलल टू BC है. ये वाला साइड और ये वाला साइड ऑलरेडी है मतलब अपोजिट साइड, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. EFG in a triangle EFG and parallelogram BCGE in a triangle EFG and parallelogram BCGE are on the same base. हम लिख सकते हैं G या BC भी हम लिख सकते हैं, और ऑन द सेम बेस BC भी हम लिख सकते हैं, या GE भी लिख सकते हैं, और ऑन द सेम बेस GE मैंने लिखा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स GE एंड BC in a triangle EFG and parallelogram EBCG are on the same base, and between the or on the same base BC और GE. मर्जी है, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल हैं.
are on the same base G and between the same parallels GE and BC। क्योंकि हम पहले ही 2 थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था, हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे हों एंड विद इन द सेम पैरेलल्स हों तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG इज इक्वल half of, 1/2 means half of area of parallelogram BCGE। अब रिजल्ट फर्स्ट, इसको हम लिखेंगे रिजल्ट फर्स्ट। इसी तरह इस तरफ जब हम देखते हैं GEH, ये भी एक ट्रायंगल है, और AEGH ये एक पैरेललोग्राम है, यानी ट्रायंगल GEH and parallelogram AEGH are on the same base GE या are on the same base AD and between the same parallels AD and GE, therefore area of this triangle will be half of the area of the whole parallelogram यानी AEGD। अब हमने भी यहाँ ऐसे ही लिखा triangle GEH and parallelogram AEGD are on the same base GE and between the same parallels GE and AD. Therefore, area of triangle GEH is equal to half of the area of parallelogram AEGD. Second, adding first and second we get area of EFG, in area of triangle है ये EFG, area of triangle EFG plus area of triangle GEH is equal to half of area of parallelogram BCGE plus area of parallelogram या half of area of AEGD। अब जब हम इनको ऐड करेंगे या इस तरफ लेफ्ट साइड में हम ऐड करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, कौन सा EFGH, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को जोड़कर हम एक पैरेललोग्राम, यानी ये एक पैरेललोग्राम बनेगा EFGH। चूँकि मिड पॉइंट थ्योरम में हमने पहले ही टर्म फर्स्ट में ये पढ़ा है, यानी इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, यानी इसका मतलब है ये EF जो है ये HG के पैरेलल होगा, यानी इसी तरह GF जो है वो HE के। तो इस तरह से ये भी अंदर एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं, यानी इन दो ट्रायंगलों को जब हमने ऐड किया तो एक पैरेललोग्राम बना EFGH, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं या एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू, जब हमने इन दो को जमा किया तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम अगर किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो जो एक क्वाड्रेटरल बनेगी, इन अंदर में जो एक क्वाड्रेटरल बनेगी उस क्वाड्रेटरल या मतलब चूँकि क्वाड्रेटरल पैरेललोग्राम भी हो सकता है, उसका एरिया उस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के निसफ होता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, P and Q or any two pointers lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD show that area of APB is equal to area of BQC। यानी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसके ऊपर दो मिड पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं, हाँ पॉइंट्स हैं, ये P है और ये Q है। जब हमने A को मिलाया P के साथ, B को मिलाया P के साथ तो एक ट्रायंगल बन गई। अब इसी तरह से यहाँ Q, हमने QC को ज्वाइन किया और BQ को ज्वाइन किया, एक और ट्रायंगल बन गई। तो हमें ये बताना है कि इन दो ट्रायंगलों का क्या एरिया बराबर होगा। अब फिर दोबारा हम
इन थ्योरमों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है कि उन्हीं से हम अपने जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन जो है P and Q are two pointers lying on the sides CD and DA respectively of a parallelogram ABCD। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन में ही था। अब हमें मालूम करना है टू प्रूव एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, यानी इन दो ट्रायंगलों का एरिया हमें बताना है क्या बराबर है। प्रूफ, अब चूंकि हमने पहले ही पढ़ा है थ्योरम में कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे हों तो उस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के मतलब निसफ के बराबर होता है। तो वही हमने लिखा ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD और ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स यानी AB एंड CD। तो क्या लिखेंगे हम, इस ट्रायंगल का जो एरिया है यानी APB और ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड CD, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम के निसफ के मतलब एरिया के निसफ के बराबर होगा, यानी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। तो फर्स्ट रिजल्ट। अगेन अब दूसरे ट्रायंगल पर नज़र दौड़ाते हैं BQC, ये भी एक ट्रायंगल है। क्योंकि इसकी बेस जो है BC एंड पैरेललोग्राम ABCD जो है यानी पैरेललोग्राम की का एक साइड और एक ट्रायंगल का एक साइड सेम है यानी BC, तो एंड विद इन द सेम पैरेलल्स यानी BC एंड AD, इसके अंदर ये ट्रायंगल बनती है बिल्कुल। यानी इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD और ऑन द सेम बेस BC and between the same parallels BC and AD. Therefore, area of BQC is equal to half of the area of the parallelogram ABCD. Now, from first and second, we get. अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के निसफ के बराबर है और APB का एरिया भी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। तो हमने हासिल किया कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।